Question number D now. Now, everyone try to see the formula which will be used here, okay? So the first formula we have to use here in this number D is limit x tends to 0, a to the power x minus 1 by x is equals to log a base e. This is the first formula. The second formula which we have to apply in this sum number D is limit x tends to 0, e to the power x minus 1 by x equals to 1. This is the second formula. So these are the two formulas, okay? And ये दो formula पे base ये पूरा number D है. Now try to understand one thing, that log का अगर value और अगर base same होगा तो answer 1 होगा. Please everyone try to understand that when the value of log and the base of log is same, then what is the answer of logarithm? It is 1. Now one more thing, the students those who have joined this tuition from the first, class, you know that मैंने सबसे पहले तुम लोगों को बेसिक जब कराया था, you know that एक महीना हम लोगों ने बेसिक्स किया था. In that I explained you what is quadratic, what is linear equation, indices, logarithm, याद है? मैंने logarithm भी कराया था. And so that's why जो लोग जैसे स्पेशली सीबीएसई स्टूडेंट्स जो लोग बाद में ज्वाइन किए और उनको लॉग का कंसेप्ट नहीं क्लियर है, उनको प्रॉब्लम हो रहा होगा कि मैं क्या बोलूं. अदरवाइज जो स्टूडेंट मेरे पास शुरुआत से ज्वाइन किए वो सीबीएसई स्टूडेंट्स, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड आईसीएसई स्टूडेंट्स, यू नो दैट यू हैव स्टडीड लॉगरिथम इन आई थिंक 8 or 9, आई थिंक 8 क्लास. ओके, सो हियर जस्ट नोट डाउन, लॉग का अगर वैल्यू और बेस सेम होता है तो आंसर क्या होता है? 1 होता है. एंड द लॉगरिथम व्हिच वी आर डूइंग इन दिस चैप्टर, आई मीन कैलकुलस में जहां भी लॉगरिथम होगा, लॉगरिथम में जहां भी बेस कुछ ना हो, what is the base of logarithm is if base is not mentioned, the base of logarithm is e. Make sure that इस पर्टिकुलर तुम्हारे कैलकुलस में, कैलकुलस मतलब लिमिट्स डिफरेंशिएशन, हर जगह जहां भी लॉग का बेस कुछ मेंशन ना हो, what is the base of logarithm? It is e. कुछ नहीं है मतलब क्या है? वो e है. अब ध्यान देना, पहला फॉर्मूला को पहले हम लोग देख लेते हैं, एक बार एप्लीकेशन पहले देखते हैं कैसे अप्लाई किया जाता है ये सारा फॉर्मूला. लिसन, suppose you have x tends to 0, 2 to the power x minus 1 by x. Suppose this is the question. Suppose you have limit x tends to 0, 2 to the power x minus 1 by x. ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए a के जगह पे देखो, a के जगह पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है. What does a denotes? A denotes any constant value, that is 2, 3, 4, 5, anything. मतलब a क्या डिनोट कर रहे हैं? एनी कांस्टेंट वैल्यू. तो किसी भी कांस्टेंट के पावर पे अगर x होता है -1 by x, and if x is tending to 0, what is the answer of this particular function for limit x tends to 0? It is log of 2 base e. क्या होगा आंसर? log a. log a मतलब a क्या है यहाँ पे? 2 है, तो it will be log 2 base e. And if I don't give anything as the base, what is base considered to be? The base is assumed to be e only. This is clear, everyone? And also make sure that, see, if I put the value of x equal to 0 here, what is 2 to the power 0? You know that 2 to the power 0, that is, anything to the power 0 is what? 1. 1 minus 1 is 0 divided by 0. You are getting 0 by 0 form. Clear, everyone? अब देखना एक और एग्जांपल में लेता हूं. Suppose you have limit x tends to 0. You have, suppose, 5 to the power x minus 1 by suppose x. Clear? Now can you tell me what is the answer of this question? जैसे तुमको पता है कि अगर हम x की जगह पे 0 लगाएंगे तो 5 to the power 0 will be 1. 1 minus 1 is 0 by 0. You're getting 0 by 0 form. So as you are getting 0 by 0 form, you know that limits में जब भी 0 by 0 form होता है तो हम लोग उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? Either by formula method or by factorization method, or we rationalize or we substitute. But here you know that you can clearly apply this formula. तो formula apply करने के लिए देखो यहाँ पे a to the power x है, यहाँ पे 5 to the power x है, -1. तो यहाँ ध्यान रखना ये 1, 2 और 3 चीज सेम होना पड़ेगा. मतलब
a के पावर पे अगर सपोज 2x होगा तो यहाँ भी 2x होना पड़ेगा, यहाँ भी 2x होना पड़ेगा, और ये हमेशा टेंड्स टू 0 होगा। क्लियर? अगर a के पावर पे 5x होगा तो यहाँ भी 5x, यहाँ भी 5x टेंड्स टू 0. This has to be every time -1. Then what is the answer? It is log ABC. Clear? So what is the answer of this particular question? Anyone who can tell me? बताओ. Yes. इतने लोग हैं, इन लोग किसी को भी नहीं. Exactly. यहाँ पे अगर हम मान लो x के जगह पे 0 लगाएंगे तो 5 to the power 0 is what? 1. 1 minus 1 is 0 by 0. You're getting 0 by 0 form. फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ये कांस्टेंट होना चाहिए, इसके पावर पे जो भी होगा वो यहाँ पे सेम होना पड़ेगा दोनों जगह, और ये दोनों जगह जो भी है वो टेंड्स टू 0 होना पड़ेगा. तो आंसर क्या होगा? log a. सो व्हाट इज आंसर? log 5. एंड बेस क्या होगा? कुछ नहीं, मतलब e. नेक्स्ट नंबर 3. अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ तो इस फॉर्मूला के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? बताओ. इस फॉर्मूला के हिसाब से इसका आंसर log e हो जाएगा, और log का बेस कुछ नहीं है, मतलब क्या है? e. log e base e क्या होगा? log e base e will be 1. So that's why we have the second formula. The second formula is nothing but we are applying formula number 1 only to get this second formula. तो second formula क्या है? second formula first formula में क्या difference है? हम लोग second, ये जो formula मैंने यहाँ लिखा है इसमें हम लोग ये formula ही apply करें, but as you are getting log e base e क्या होता है? 1 होता है, and that's why we write directly 1. I hope it is clear everyone now. Okay, now I'm moving ahead with the questions which you have in the PDF. If you have any doubt, please ask me. I'm waiting. If you have doubt, please ask me. मैं जो भी doubt है मैं clear कर दूंगा. तुमको अगर कोई कंफ्यूजन है, तुमको क्लियर नहीं हुआ तो पूछ कोई बार. ठीक है? और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 2 3 ये तीनों जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और टेंस टू क्या होना चाहिए? 0. ये तीनों जगह सेम होना चाहिए, और ये टेंस टू क्या होना चाहिए? 0. क्लियर? अब देखो, now B का पहला क्वेश्चन, and that is number 1. So the question is limit x tends to 0, e to the power 4x minus 1 by x. This is the question. Now let's first of all check whether this is of the form 0 by 0 or not. If I put at the place of x 0, 0 4 ja 0, e to the power 0 is 1, 1 minus 1 is 0 by 0. You are getting 0 by 0 form. So as you are getting 0 by 0 form, I cannot put the value now. I have to use the formula method. You cannot factorize because e के power पे 4x है, factorization possible नहीं है, rationalize भी नहीं कर सकते. तो formula apply करने के लिए अभी मैंने बताया था कि e के power पे जो भी चीज है वो यहाँ पे होना पड़ेगा, और ये सेम चीज टेंस टू क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा. So एक बात बताओ, इसके हिसाब से यहाँ पे e के पावर पे 4x है, तो बताओ तो यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कोई बता सकता है? यस, लेट मी जस्ट लाइक हियर फ्रॉम यू, टेल मी क्या करना चाहिए? यस, डोंट हेजिटेट, आई मीन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ. वेरी गुड. मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by 4. Why? If you multiply numerator and denominator by 4, you'll find that you'll get this particular function in this form, because I said just now ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए e के पावर पे जो भी है वो यहाँ पे दोनों जगह सेम होना पड़ेगा. e के पावर पे 4x है तो यहाँ भी 4x लाना पड़ेगा. प्लीज नोट डाउन, ये अगर तुम्हारा लिमिट्स क्लियर नहीं होगा तो एक चैप्टर आता है फर्स्ट प्रिंसिपल, जो एवरी टाइम इन एग्जाम यूजुअली वी हैव सीन दैट फर्स्ट प्रिंसिपल से एक सम आता है 6 मार्क्स का. ये सब चीज क्लियर नहीं होगा तो फर्स्ट प्रिंसिपल कुछ समझ में नहीं आएगा. सो प्लीज व्हेरेवर यू फाइंड एनी डाउट प्लीज रेस्पोंड वंस. ओके, आस्क योर डाउट्स. तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई कर दिया. नेक्स्ट, now there is a property that in limits that limit x tends to a constant into fx. मान लो कोई कांस्टेंट और फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म है तो कांस्टेंट को बाहर रख देना
और फंक्शन पे लिमिट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। कोई कांस्टेंट और वेरिएबल अगर प्रोडक्ट फॉर्म है तो उस कांस्टेंट को हम लोग बाहर रख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर रख दो। You understand the meaning of constant? Anything which is independent of x is called a constant. बाहर रख दिया। अब देखो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए e के पावर पे जो भी चीज है वो ये दो सेम चीज यहाँ पे टेंस टू के लेफ्ट में होना चाहिए एंड इट शुड बी टेंस टू 0, मेक श्योर। नाउ e के पावर पे 4x है, यहाँ भी 4x है, तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4x टेंस टू 0 होना चाहिए। क्या यहाँ पे 4x टेंस टू 0 है? नहीं। एक बात बताओ, x टेंस टू 0 को 4x टेंस टू 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट अस मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड and right side both by 4. So this will become 4x tends to 0. So if you see the formula, according to this formula we find that this whole thing becomes what? 1. 1 into 4 becomes 4. So this is the answer. I'll give you one more example and then it will be clear to you. Suppose you have x tends to 0, e to the power 5x minus 1 by 4x. Let's take this sum, okay? Now, first of all, let us put the value of x equal to 0 here. If I put the value of x equal to 0, what is e to the power 0? E to the power 0 is 1. 1 minus 1 is 0 by 0. Are you getting 0 by 0 form? As you are getting 0 by 0 form, you cannot now put the value. You have to apply formula. So tell me, formula apply करने के लिए यहाँ पे e के पावर पे 5x है, तो यहाँ पे 5x होना पड़ेगा. So tell me, in order to get 5x here, what is to be multiplied? Anyone? बताओ. So simple, like what you have to do is multiply numerator and denominator by 5, because you cannot divide it by unequal quantities. हम लोग ऊपर नीचे अलग अलग क्वांटिटी से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 5/4 कांस्टेंट है, इसको बाहर रख दो। 5/4, 4 पहले से था और अभी 5 मल्टीप्लाई किया तो 5/4 को बाहर रख दो। इसके बाद x टेंड्स टू 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 5 बोथ द साइड्स, ये हो जाएगा 5x टेंड्स टू 0. So this becomes how much? 1. 1 into 5/4 is 5/4. So this is the answer. Okay, everyone copy down first. So copy down both these examples once. This is not there in the PDF. I'm putting asterisk here. This is number 1. D का number 1 which is there in the PDF. This is another type. Okay, ये इसी टाइप का है, मतलब एक और एग्जांपल मैंने दिखा दिया, फटाफट कॉपी करो। We copied both the sums. And make sure that in order to apply this formula, it should be e to the power x minus 1 only, not 2 or 3 or something like that. Okay.
So make sure everyone. Now, I'm taking sum number 2 of your PDF, okay? जो मैंने भेजा है worksheet, उसका मैं question number 2 में अभी बता रहा हूँ. You have x tends to 0 e to the power x plus 2 minus e square divided by x. This is the question. Okay, just note down everyone. If I put the value of x equal to 0, what is e to the power 0? Sorry, e to the power 0 plus 2 is what? E to the power 2. E square minus e square is what? 0 by 0. You're getting 0 by 0 form. So as you are getting 0 by 0 form, you cannot, put the value here. You have to apply the formula. Now just listen a few things. Suppose you have x to the power 5 minus x to the power 7. ध्यान से एक बार नोट करना. अगर मान लो मैं दोनों टर्म्स में से x to the power 6 मैंने कॉमन लिया, सपोज ये दोनों टर्म्स में से मैंने x to the power 6 कॉमन ले लिया. अगर मान लो ये दोनों टर्म्स में से अगर मैं x to the power 6 कॉमन ले लूं, तो बताओ तो यहाँ पे x के पावर पे क्या आएगा? यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा? 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज फ्रॉम बोथ दिस टर्म्स आई एम टेकिंग x to the power 6 कॉमन. If I am taking x to the power 6 common, means from this x का power I have to subtract 6. और यहाँ से भी क्या करना पड़ेगा मुझे? 6 subtract करना पड़ेगा. So एक बात बताओ, what you are getting? X to the power 6, x to the power minus 1 minus x to the power 1. Check. Clear? Now suppose you have x to the power 6 minus x to the power 4. If I take x square common from both these terms, इन दोनों terms में से अगर मान लो मैं x square common ले लिया मैंने, तो बताओ तो एक बार यहाँ पे क्या बचेगा? इस वाले में क्या बचेगा बताओ तो? If I take x square common, yes? कैसे? x to the power 4 बचा? देखो 6 है, 6 minus 2 that is 4. यहाँ पे क्या बचेगा? x square. कैसे? 4 minus 2 is 2. Are you understanding? So exactly same way, just note down here everyone. What I'll do is, from both these terms, I'll take e square common. If I take e square common from both these terms, e के पावर पे क्या बचेगा? कोई बता सकता है यहाँ पे क्या बचेगा? यस, क्यों? बिकॉज x plus 2 minus 2, सी x plus 2 है, मैंने e square कॉमन लिया तो यहाँ से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, minus 1. E square is a constant, keep it outside. Clear? Then what is left? E to the power, ये 2 cancel हो गए. Now just check once. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पूरा का आंसर क्या हो जाएगा? 1. And what is 1 into e square? It is e square. This is the answer. Is this clear everyone? Okay, now I am giving you sum number 3 to try once. Everyone try question number 3 and question number 4. Hurry up. ये दो sums try करो. Let me see किस कौन कर पाते हैं. इसका concept clear है. Try करो. Number 3 and 4. Anyone who has done number 3? Yes, anyone? Question number 3.
Yes, to tell me what is the answer? Anyone? No one. See it, everyone. If I put the value of x equal to 0, e to the power 0 is 1, 1 minus 1 is 0 minus 0 is 0 by 0. You're getting 0 by 0. थोड़ा सा दिमाग लगाओ. Now सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि अगर मान लो मैं e to the power x minus 1 को मैं अगर सेपरेट कर दिया, सपोज इफ आई सेपरेट e to the power x minus 1 एंड माइनस x को अलग लिख दिया सपोज, तो ध्यान से एक बार नोट करना. तो क्या होगा देखो, इसको इससे स्प्लिट करना और इसको इससे स्प्लिट करना. Apply limit. Listen here. There is a property that suppose if you have limit x tends to a fx plus minus gx, so I can write this as limit x tends to a fx plus minus limit x tends to a gx. We can मतलब हम लोग ऐसे अलग अलग सेपरेट करके कर सकते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार लिमिट इस पे अप्लाई करेंगे, एक बार लिमिट इस पे अप्लाई करेंगे. Now listen yes everyone. बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? यस, इसका आंसर क्या होगा? 1. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बताओ तो? कैसे होगा 0? प्लीज कैन यू एक्सप्लेन मी हाउ 0? If you put the value of x equal to 0 here, if you put x equal to 0 here, you are getting 0 by 0. Right? How you can put the value? Can you just tell me? You are getting 0 by 0. तो 0 by 0 वाला तो कैंसिल करना पड़ेगा ना. एक बात बताओ, सपोज मान लो x टेंड्स टू 1 है, x minus 1 into x plus 1 by x minus 1. तो यहाँ पे क्या हम x की जगह 1 लगा देंगे, 1 minus 1 0, 0 into anything is 0. ऐसे लिखेंगे हम लोग आंसर. क्या करेंगे हम लोग? जिसके कारण 0 by 0 फॉर्म आ रहा है वो कैंसिल करना पड़ेगा ना आपको. तो वैसे यहाँ पे 0 by 0 फॉर्म है ना, इसको x को कैंसिल कर दो. तो क्या बचा? x को कैंसिल करने के बाद 1 बचा. कि x by x क्या होता है? 0. नहीं, ये 1 आ जाएगा ना. So what is 1 minus 1? 1 minus 1 is 0. Is this clear everyone? 1 इसका आंसर 1, इसका आंसर 1. तो 1 minus 1 क्या हो जाएगा? 0. 0 is the answer. Is this okay everyone? Okay. Next try question number 4 now. क्योंकि यहाँ पे x कैंसिल हो गया तो अगर मान लो सपोज इफ आई से लिमिट x टेंड्स टू 1, 2 क्या होगा? अगर मान लो x टेंड्स टू 1 है और यहाँ पे क्वेश्चन में 2 है, तो आंसर क्या होगा? 2 का 2 ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ पे. Now try question number 4. Anyone who got the answer of question number 4? Very good. कौन है ये? Very good. Now after you have answered, please mute yourself so that don't get disturbed. Okay. Very good. Absolutely correct. बहुत अच्छा है. इससे देखो ये सबसे पूरी पता चल जाएगी कि तुम कितना समझा है और क्या चीज अप्लाई कर रहे हो. I'm just giving you most few seconds. Okay. Hurry up. Everyone try. Answer is e to the power 4 is absolutely correct. Done. Good. Now listen here everyone. See, if I put the value of x equals to 4
e to the power 4 minus e to the power 4 is 0 by 4 minus 4 is 0. एक बात बताओ, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए e to the power x देखो, e to the power x by x और x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा 1. मतलब e के पावर पे जो भी होगा सेम चीज यहाँ पे होना चाहिए, और ये चीज क्या होना चाहिए, टेंड्स टू 0. लिसन हियर, टेंड्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. देखो ध्यान से एक बार, इससे पूरा पूरी पता चल रहा है कि यहाँ पे x माइनस 4 है और x टेंड्स टू 4 है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इन दोनों में से मैं e टू द पावर 4 कॉमन ले लूंगा. इफ आई टेक e टू द पावर 4 कॉमन फ्रॉम दिस e के पावर पे हम क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज अगर मैं e टू द पावर 4 कॉमन ले रहा हूं दोनों में से, तो यू नो दैट अभी जस्ट मैंने बताया था e टू द पावर x से मैं e का कितना पावर कॉमन ले रहा हूं, 4. तो पावर से 4 सब्ट्रैक्ट. Now e to the power 4 is a constant or a variable? It's a constant because e is a constant, 4 is a constant. If e is a constant, 4 is a constant, मतलब दोनों constant है. समझ में आया? मतलब ये पूरा क्या है, constant है. इसको बाहर रखते हैं. e पता है, मैंने जब रियल नंबर्स पढ़ाया था, जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ाया था, तो मैंने बताया था e is a rational number, sorry, irrational number which lies between 2 to 3. Okay? So ये constant है. एक और चीज ध्यान देना तुम लोग कि फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए e के पावर पे जो भी चीज है ये सेम चीज यहां भी होना चाहिए, और ये टेंड्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. बट यहाँ पे x टेंड्स टू 4 है, तो क्या मैं x टेंड्स टू 4 को 4 लेफ्ट में लेकर के, लेफ्ट में मैं 4 लेके आ जा रहा हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं x minus 4 tends to 0. So x tends to 4 is same as x minus 4 tends to 0. So what is this? This becomes 1. 1 into e to the power 4 is e to the power 4. So this is the answer. Okay, next. Now I'll explain you number 5. Please everyone concentrate properly. So number 5 को ध्यान से देखना है. 5 को मैं 2 मेथड से बताऊंगा. इसके बाद नंबर 6 को तुम लोग 2 मेथड से करके दिखाएगा. Okay? Copy down first. So everyone has copied this. I think no one is copying now. Now see question number 5. ध्यान देना, ये वाला सब देखो. मैं इसको 2 मेथड से करके दिखाऊंगा, ध्यान से नोट करो. सबसे पहला चीज, अगर हम x के जगह 0 लगाते हैं तो e to the power 0 minus e to the power 0, 1 minus 1 हो गया 0 by 0. You're getting 0 by 0. So as you are getting 0 by 0 form, now just see what I am going to do. सबसे पहला चीज, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0, e to the power x minus 1 by x होना चाहिए. तो आंसर क्या होगा, 1. ना यहाँ पे e to the power 2x, e to the power 3x. इसके पिछले वाले सम में e to the power x minus e to the power 4 था. तो e to the power 4 कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे e to the power 2x कांस्टेंट नहीं, इट्स अ वेरिएबल. बिकॉज देखो, वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपल तरीका है, जिसमें x हो दैट इज अ वेरिएबल, जिसमें x ना हो दैट इज अ कांस्टेंट. सो व्हाट इज e? e is a constant. What is e square? E square is a constant. What is e to the power 2x? It's the variable. तो ध्यान देना, मैं क्या करूंगा, सबसे पहला चीज, once I'll subtract 1 and once I'll add 1. इससे क्या फायदा होगा, ध्यान देने का, देखते जाइए. -1 किया और हटाने के लिए +1 कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए e के पावर पे x है तो -1 होना पड़ेगा. e to the power 3x minus 1 को एक ब्रैकेट के अंदर रख लेना. e to the power 3x minus 1 को एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेना. और यहां पे ये दोनों टर्म्स में को क्या लिख सकते हैं,
माइनस ई टू द पावर 2x प्लस 1 लिख सकते हैं हम लोग। Now what common do we have here? Can I take minus common? अगर मैं minus sign common ले लूं तो ये e to the power 2x minus 1 हो जाएगा. See, and in math the best way is you explain yourself. You took e minus common. Now you explain yourself whether it is right or wrong. कैसे? Minus plus minus 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 plus. मतलब correct है. अगर मान लो तुम यहाँ पे प्लस लिखा रहता तो गलत हुआ. कैसे? माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस. यहाँ माइनस है नहीं, मतलब गलती है. क्या गलती है? यहाँ माइनस हुआ. अब हम इसको इससे स्प्लिट कर लेंगे, इसको इससे स्प्लिट कर लेंगे. आई स्प्लिट विद द डिनोमिनेटर. ठीक है, इसको डिनोमिनेटर से स्प्लिट कर लो और उसके बाद लिमिट को दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर लो. ठीक है, दोनों पे लिमिट अलग अलग अप्लाई कर लिया. देखो इस पे और इस पे अलग. अब कोई बता सकता है इस पे क्या करना चाहिए? बताओ तो. इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए? बताओ तुम लोग. एंड दो. देयर आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस. बताओ क्या करें. क्या बताइए? यू आर नॉट इंटरेस्टेड? यस. हाँ, यहाँ पे यस, यहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे. When I ask something, यानी एक जन कोई एटलीस्ट अनम्यूट करके बोल सकता है अगर तुमको पता है तो. Should not be one way communication. Both ways होना चाहिए तो जाके मजा आता है. 3 कांस्टेंट है बाहर रख, ये भी कांस्टेंट है लेकिन इसको बाहर रखने से फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाएगा. यहाँ पे 2 बाहर लेके आ जाओ. इसके बाद लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा. क्या बनाना पड़ेगा? 3x टेंस टू 0. तो क्या मैं x टेंस टू 0 में दोनों तरफ 3 मल्टीप्लाई करके इसको बना सकता हूँ 3x टेंस टू 0? यस. We can write this as 3x tends to 0. We can write this as 2x tends to 0. How? By multiplying 2 both the sides. This becomes 1. 1 into 3 is 3. 1 into 2 is 2. What is 3 minus 2? 1. Everyone copied on this? Now everyone, listen here. क्वेश्चन नंबर 6 पहले तुम लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को सेम इसी मेथड से करके दिखाओ तो. समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? आई सेड यू 2 ways. पहले एक बार इस मेथड से क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाओ. एवरीवन do question number 6 exactly the same way. But if you have any doubt in this sum, you can unmute your device and you can ask me. अगर किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं तुम. Else you can try question number 6 now. Please mute your device.
What is the answer, anyone? Of number 6? Yes, it is correct. B minus A is the correct answer. तो एक बार पहले बाकी सबको ही कर लो, फिर मैं नंबर 5 को एक और तरीके से बताता हूँ. प्लीज म्यूट योर डिवाइस. म्यूट करना. म्यूट कर लेना एक बार. आफ्टर यू हैव आंसर्ड प्लीज म्यूट योर डिवाइस. किसका डिवाइस म्यूट नहीं है देखो तो एक बार जस्ट. Now next. Now see, I'll explain you the alternative way of doing this sum. ध्यान देने का. Please mute your device. Who is that? Please just can you just tell me? Are you just क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है तो इसीलिए मैं see. Just tell me one thing. What is limit x tends to 0 e to the power 5x? Let me see who can answer. इसका आंसर क्या होगा बताओ. Yes. What is x? Yes, very good. Because you are finding that यहाँ पे अगर मैं x की जगह 0 लगाता हूँ तो e to the power 0 क्या हो जाएगा 1. So as you are not getting 0 by 0 form, you can put the value. Okay? अब ध्यान से एक बार ये सम को देखना है. अब मैं इस सम को अल्टरनेटिव वे से बताऊंगा. देखना. So what I'll be doing is I will take e to the power 2x common. If I take e to the power 2x common, इसके पावर पे क्या बचेगा? मुझे 2x देखो इन दोनों में से मैं e to the power 2x कॉमन ले रहा हूं. e के पावर से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 2x. e to the power 3x minus 2x is x. अब ध्यान देना एक बार. नेक्स्ट इसके बाद इस स्टेप के बाद अगर हम लोग मान लो इस स्टेप के बाद सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे. तो एक बात बताओ, e to the power 0 क्या होता है? 1. e to the power 0 is 1. 1 minus 1 is 0 by 0. देखो एक बार ध्यान से नोट करना. ये पार्ट देखो, ये पार्ट 0 by 0 फॉर्म में आ रहा है, बट ये पार्ट 0 by 0 फॉर्म में नहीं है. तो हम क्या करेंगे? ध्यान से एक बार नोट करना. हम लोग अलग अलग कर लेंगे. e to the power 2x को अलग फंक्शन और e to the power x minus 1 by x को अलग फंक्शन कर लेंगे. ये पार्ट हो जाएगा 1 और यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देना. तो e to the power 0 क्या हो जाएगा? 1. So what is e to the power 0 into 1? It is 1. 1 is the answer. Okay, I repeat once again. What I did here, मैंने इन दोनों में से e to the power 2x कॉमन ले लिया बिकॉज दोनों का बेस सेम है. तो जब कॉमन लेंगे तो इसके पावर से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 2x. इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि e to the power 0 is 1. 1 minus 1 is 0 by 0. ये पार्ट 0 by 0 फॉर्म में, तो इसको अलग कर दो. ये 0 by 0 नहीं है तो इसको अलग करके इसमें वैल्यू पुट कर दो. देखो इसमें वैल्यू पुट कर दिया और इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. इसमें एक में वैल्यू दूसरा में फॉर्मूला. एंड व्हाट इज द आंसर? 1. Exactly same way you all can try question number 6 the same way, but leave that question. Number 6 तुम लोग ट्राई करना घर पे खुद से इस तरीके से. अभी मैं नंबर 7 बताऊंगा. ओके, एक बार कॉपी करो तीन तरीके. दिस इज द आई मीन जो ज्यादा शॉर्टकट है पिछले वाले कंपैरिजन. Everyone is copied?
No, ध्यान दो. Question number 7. So the question is limit x tends to 0, 2 to the power 3x minus 1 by 4x. This is the question. Now you know that we have used one more formula, and the formula is x tends to 0, a to the power x minus 1 by x equals to log a. है कि नहीं? ये फॉर्मूला तुम लोग देखा है. अब यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए बताओ तो क्या करना चाहिए. तो मैंने पहले ही बताया था तुम लोग को, ये पहले भी सम किया ही हुआ है तुम लोग. तो एक बार कंप्लीट करो तो फटाफट. एवरीवन कंप्लीट दिस सम एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर 8. लेट मी सी क्वेश्चन नंबर 7 करके 8 कौन कर पाता है, बट करके दिखाओ तो. क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करके. नहीं, 3/4 नहीं है. Wrong. What is the answer? Just check once. What is the formula? It's not 1. It's log a. तुम देखो आज पहला जो सम मैंने कराया था वो क्या था. पहला, दूसरा, तीसरा ये सब सम्स कराया था. क्या था देखो तो एक बार. जब मैंने पीडीएफ से स्टार्ट करने से पहले 2-3 सम जो कराया था यही तो था ना. इसी के ऊपर बेस्ड था. चेक करो. क्या करना पड़ेगा. पहले हम लोग को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बिकॉज यहाँ पे 2 to the power 3x है. तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए 2 के पावर पे जो भी है, a के पावर पे जो भी है वो यहाँ पे होना पड़ेगा. ठीक है. देखो ये चीज और ये चीज दोनों सेम होना पड़ेगा, और ये दो चीज टेंड्स टू 0 होना पड़ेगा. 2 के पावर पे 3x है. लेट अस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3 फर्स्ट. Now 3/4 is a constant. Keep it outside. We can write x tends to 0 as 3x tends to 0. Now what is the formula? A to the power x minus 1 by x is log a. So what is the answer? It is log 2. This is clear. Now try number 7. Sorry, 8. 8 number try कर. किसी का हुआ नंबर 8? Answer is not just log 2. I think it is. You are talking about number 8. Number 8 answer is not just log 2. It's 3 log 2 minus 2 log 3. So देखते हैं ऊपर हो. Yes, correct. Very good. Answer is 3 log 2 minus 2 log 3. Absolutely correct. See, first of all, if you think in number 8 that you will take common, you cannot take common because दोनों का base same नहीं. So I'll try this sum. First method, okay, by the first method which I explained, okay. तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? पहले -1 फिर +1. Sorry.
ओके, -1 किया, +1 कर दिया मैंने। 2⁻³ को एक ब्रैकेट के अंदर रख लेना, ठीक है। और इन दोनों टर्म्स में से देखो, इन दोनों टर्म्स में से -n कॉमन है। इसको इससे, फिर इसको इससे सेपरेट करो, स्प्लिट करो। इसको इससे, उसके बाद लिमिट को दोनों पे अलग अलग अप्लाई करो। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाने के लिए a के पावर पे जो भी होगा यहाँ पे डिनोमिनेटर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 के पावर पे 3x है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई करना। 3 को मैं बाहर रख देता हूँ, अब तो समझ में आ जा रहा होगा। इधर जो 3 है उसको मैं बाहर रख दिया डायरेक्ट। क्या मैं x टेंस टू 0 को 3x टेंस टू 0 लिख सकता हूँ? मल्टीप्लाइंग 3 बोथ द साइड्स। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में just a minute. I think this is the question. No, I think I've copied the wrong question. तुमने बोला भी नहीं। 3 के पावर पे यहाँ पे 2x था। ओके, अब यहाँ पे हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2। 2 कांस्टेंट है, बाहर रख दो। उसके बाद x टेंस टू 0 को हम लोग 2x टेंस टू 0 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? log 2, और ये क्या हो जाएगा? log 3। This is the answer. Leave it as it is. Okay, now next. After this, you have to do question number 11 and 14. 11 and 14. These are the two sums you have to do. 11 and 14. So have you done number 11? Anyone? Okay. Two by x.
x is not possible in the answer. How answer will be 2 by x? It has to be a constant. Now, question number 11 देखना एक बार. See, everyone, I know you are getting confused. This sum, how you all are doing, I know that. तुम लोग क्या कर रहे हैं देखो. But एक बार पहले ध्यान से देख लो यहाँ पे. ये सम एक बार देख लो. अगर क्वेश्चन ऐसा होता, अगर क्वेश्चन ऐसा होता, x डिनोमिनेटर में अगर x होता, तो फिर जैसे तुम लोग कर रहे हो वो राइट है. आई नो दैट कंफ्यूजन कहाँ होता. एक बार पहले ये सम देखो. इसके हिसाब से I can write -2 as -1 -1. Are you understanding? -1 becomes -2. इसको इससे फिर इसको इससे स्प्लिट कर दो. समझ में मैंने क्या बोला? अगर डिनोमिनेटर में x होता तो, ये सब मैं नहीं बता रहा, ये सब बता रहा हूं मैं. ये हो जाएगा 1 और इसमें क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इधर -x लाने के लिए ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे. Is this clear? Plus minus is minus. X tends to 0 can be written as minus x tends to 0. This becomes 1. 1 minus 1 is 0. So ये अलग क्वेश्चन है. अगर डिनोमिनेटर में x स्क्वायर होता तो ये सही था. यहाँ पे x स्क्वायर, इधर x होता तो सही था ये तरीका से. लेकिन यहाँ पे x थोड़ी ना है, क्या बताओ तो x स्क्वायर है. तो बहुत लोग सेम तरीका ट्राई कर रहे हो. आई एम 100% श्योर बहुत लोग इस सम को भी इस तरीके से ट्राई कर रहे हो. बट इट कैन नॉट बी डन दिस वे बिकॉज यहाँ पे x है तो ठीक है, बट अगर x स्क्वायर है तो ऐसे नहीं कर सकते. क्या करना है देखो एक बार ध्यान से नोट करना है. क्या मैं e टू द पावर माइनस एक्स को 1 बाई e टू द पावर प्लस एक्स लिख सकता हूं? Now let us take LCM. So we have e to the power x into e to the power x is e to the power x का whole square. ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. e to the power x whole square प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, देखो ध्यान से एक बार देखना, e टू द पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू e टू द पावर x को 2 इंटू e टू द पावर x इंटू 1 लिख सकते हैं हम लोग. देखो एक बार, क्या मैं इसको 2 इंटू e टू द पावर x इंटू 1 लिख सकता हूं? बिकॉज यू नो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab is a minus b का होल स्क्वायर. I repeat once again, a square plus b square minus 2ab is a minus b का whole square. अब क्या करेंगे हम लोग? Let us put the value of x equal to 0. What is e to the power 0? It is 1. 1 minus 1 is 0. e to the power 0 is 1 और ये 0 था. मतलब
ये वाला पार्ट 0/0 फॉर्म में आ गया। तो इस पार्ट को अलग कर लो, इसको अलग फंक्शन ले लो, एंड 1/e⁻x को अलग कर लो। ठीक है, क्या किया मैंने, उनको पता है कि 1/e⁻x, इसको अलग फंक्शन ले लिया, बिकॉज यहाँ पे अगर हम लोग x की जगह 0 लगाएंगे तो e⁻0 विल बी 1, 1/1 becomes 1, ये पार्ट हट गया। अब ये पार्ट को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोनों का पावर स्क्वायर है, आई कैन राइट दिस एज e⁻x - 1/x का होल स्क्वायर। नाउ देयर इज अ प्रॉपर्टी लिमिट्स दैट सपोज यू हैव लिमिट x टेंड्स टू a fx होल टू द पावर n, you can write this as limit x tends to a fx का होल टू द पावर n। हम लोग मतलब लिमिट को पावर के अंदर लिख सकते हैं। there is a property, ये 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, दिस इज द आंसर। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ दिस सम्स आर डिफरेंट। इसको अगर डिनोमिनेटर में x होता तो ये तरीके से होगा, x स्क्वायर है तो ये तरीके से नहीं होगा, ये वाला तरीका से। you have to do this way, complete first। अगर आज का ये टॉपिक समझ में आ गया तो फिर कल नेक्स्ट क्लास में नंबर ई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज नंबर ई इज एग्जैक्टली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ नंबर डी। यू हैव टू टेक वन क्लास ओनली टू कंप्लीट नंबर ई। Okay, now you'll complete this sum and 14 you will try it at home. बताओ तो 14 में क्या करना है, बताओ तो। Yes, anyone? Anyone who can explain me number 14 में क्या करना है? Yes. Very good. And after dividing it by x, in the numerator you have to apply the formula of a⁻x separately and in the denominator separately. Very good. So with this everyone, I am ending today's class.